Good morning, students. We are doing our chapter equality, and today's topic is dimensions of equality. Under this topic, we will cover three dimensions of equality. One is the political equality, then social equality, and economic equality. So we start with the political equality. What is political equality? Political equality includes equal citizenship rights. So what is political equality? Equal citizenship rights means every citizen in our country have equal rights irrespective of their caste, their religion, their color, place of birth. So political equality includes equal citizenship rights to all the members of the society. And what political equality includes, like right to vote, like every person in our society above 18 years of age has right to vote, or we can say that one vote, one value means vote of a rich person has the same value as the vote of a poor person. There is no discrimination on the basis of their religion and caste. Then right to contest election. In the same way, we have right to vote. Every citizen in our country have right to contest the election. Every citizen in our country has a chance to come into the government. Like every citizen above the age of 25 years in our country has right to contest the election. And then freedom of expression, as we have freedom of speech. We can express our views freely. And then movement and association, movement throughout the country and freedom to make the associations. So this is political equality. Political equality is essential for proper development of citizens. Why we need political equality? We need political equality for the proper development of the citizens. Then if we cover the second one, the social equality. What is social equality? Social equality, as the name suggests, that equality in the society. हम किसकी बात करेंगे कि सोसाइटी में जो है एक इक्वालिटी होनी चाहिए. और सोसाइटी में इक्वालिटी कब क्रिएट होगी? जब हम डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी से एलिमिनेट कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे, उसको हम खत्म कर देंगे डिस्क्रिमिनेशन को, तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा? एक इक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी. और उस इक्वालिटी को हम क्या बोलेंगे? हम सोशल इक्वालिटी बोलेंगे. मींस एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, जितने भी पर्सन हैं सोसाइटी में और जितने भी काइंड के डिस्क्रिमिनेशंस हैं, चाहे वो कास्ट को लेकर है, चाहे वो रिलीजन को लेकर है, चाहे वो जेंडर को लेकर है, जब हम उन सब डिस्क्रिमिनेशंस को अबॉलिश कर देंगे सोसाइटी से, तो सोसाइटी में क्या क्रिएट हो जाएगी? इक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी. दैट एवरी पर्सन इज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, और उसको हम बोलेंगे सोशल इक्वालिटी. सो व्हाट इज सोशल इक्वालिटी? मिनिमम लाइफ कंडीशन टू ऑल सिटीजन्स. एंड in the second thing, we discussed that minimum life condition to all citizens means every citizen has a right to get a minimum life condition in the society. हर एक सिटीजन हमारी सोसाइटी में उसको एक राइट है कि वो मिनिमम लाइफ कंडीशंस जो है उसको मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, या बेशक जो है जेंडर डिफरेंसेस हैं. दैट एवरी सिटीजन इन आवर सोसाइटी इज लायबल टू गेट द मिनिमम कंडीशन. एंड इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि जो मिनिमम कंडीशंस हैं वो जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करे अपनी सोसाइटी में, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट आर दीज मिनिमम कंडीशंस? लाइक एजुकेशन फैसिलिटीज, health facilities, because it is not possible for every person to get education from, we can say that जो बड़े स्कूल्स हैं या जिनका फीस स्ट्रक्चर हाई है, ये हर एक सिटीजन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो है वहीं से एजुकेशन जो है ले सकें. सो ये ड्यूटी बनती है किसकी? गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट शुड मेक मिनिमम अरेंजमेंट और शुड मेक arrangements to provide education to the every section of the society. Same in the case of health. Like अगर हम अपने ही सिटी की बात करें तो यहाँ पर एक से एक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, और जो है गवर्नमेंट जो है सिविल हॉस्पिटल भी है. बट हर एक जो पर्सन है इज नॉट एबल टू get the facility of private hospital.
कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज ले सके, हर एक पर्सन जो है वो उसकी रीच में नहीं है। तो अगेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मिनिमम हेल्थ फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन्स इन द सोसाइटी टू मेंटेन द सोशल इक्वालिटी, ताकि जो है एक सोशल बैलेंस जो है वो सोसाइटी में बना रहे। Then we talk about the gender equality. Gender equality. Gender equality, as the name suggests, the discrimination on the basis of the gender. And discrimination on the basis of the gender should be abolished in the society. देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आज भी कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज हैं, जो हम कह सकते हैं कि थोड़े से बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर आज भी जो है गर्ल्स को जो है हायर एजुकेशन के लिए जो है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती, या फिर सोसाइटी की तरफ से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं विमेन के ऊपर, गर्ल के ऊपर। दिस इज जेंडर इनइक्वालिटी। सो टू मेंटेन ए गुड सोसाइटी वी शुड remove or abolish all these kind of inequalities from the society. This is known as the social equality. Like if we talk about the Article 17 of our Constitution, in Fundamental Right, Part 3 of Constitution, there is Article 17, and what does Article 17 say? Article 17 is about that abolish of untouchability, any kind of untouchability. आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स में है, वो हर तरह की जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछात है, उसको जो है अबॉलिश करता है, उसको खत्म करता है। वी कैन से दैट वी हैव लीगल फोर्स बिहाइंड दीज इक्वालिटीज, बट स्टिल इन आवर सोसाइटी, फिर भी आज भी हमें हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसी चीजें जो हैं देखने को मिलती हैं, जहां पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हमें ऑब्जर्व देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। आप भी अपने आसपास देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है। सो बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो दैट वी शुड अबॉलिश दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम आवर सोसाइटी to maintain a proper equality in society. If it is not ensured, talent of many people are wasted. As we have discussed that अगर सोशल इक्वालिटी को मेंटेन नहीं किया गया सोसाइटी में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द फैसिलिटीज, और हम कह सकते हैं कि वो इतने सक्षम नहीं है कि वो जो है अच्छी फैसिलिटीज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर सकें। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सम बेसिक लाइफ फैसिलिटीज टू ऑल द सिटीजन्स। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इफ इट इज नॉट एंश्योर्ड, टैलेंट ऑफ मैनी पीपल आर वेस्टेड। बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हमारी सोसाइटी में। लाइक अगर हम जेंडर इक्वालिटी की ही बात लेते हैं, तो बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं एजुकेशन में, दे कैन डू वेल, और बहुत अच्छा वो कर सकती हैं अपनी लाइफ में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैसिलिटीज और जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी उनको एक जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। सो to make a balance in the society, what we need social equalities. And then now we come to the third dimension of equality, that is economic equality. जब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हम ये नहीं कर सकते कि सभी के पास जो है एक जैसा पैसा हो, एक जैसी सबकी सैलरीज हो। इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस दैट डिवीजन ऑफ वर्क टू मेंटेन अ बैलेंस इन द सोसाइटी। हमने क्या किया था, डिवीजन ऑफ वर्क जो है हमने डिस्कस किया था कि भैया इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम सबको जो है एक ही उसमें जो है ट्रीट करें, और जो है डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो सोसाइटी में रहेगा ही रहेगा। मींस ऐसा नहीं है कि भाई सभी के सभी जो है या तो हायर पोस्ट पे ही चले जाएं, और हम इस बेस पे ये नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी है। सो एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी, फर्स्ट थिंग। देन व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी? सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड इनकम लीड्स टू इकोनॉमिक
इनइक्वालिटी, जो डिफरेंस है बेसिकली किसके बीच में डिफरेंस है, जो रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस है, दैट क्रिएट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, तो अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री आज भी 70-30 की रेशियो पर है। 70% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो 30% इनकम है उनके पास, और जो 30% है उनके पास 70% इनकम है। दैट इज estimated ratio in our society. So what we can do to minimize this gap between the rich and poor? So government should take some corrective measures to minimize this gap from between rich and poor. Government को ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो rich और poor है उसके बीच का जो है गैप जो है वो खत्म हो सके। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज में मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो क्या करना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, that government should provide equal opportunities. As we have discussed in the last session also, that equality does not mean equal treatment. What is equality? Equality is all about equal opportunities. Equal treatment जो है वो equality नहीं है। equality क्या है? equal opportunities है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो आपके स्कूल में कोई इवेंट है, कोई बेसिकली कोई इवेंट है, चलो ड्राइंग कंपटीशन है आपके स्कूल में, आपकी इंटर क्लास है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हैज इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन। दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। भाई सभी स्टूडेंट्स आपकी क्लास के या इंटर क्लास हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल राइट है दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। हम किसी भी स्टूडेंट को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से किसी भी लेवल पर या किसी भी रीजन से हम उसको नहीं रोक सकते। अगर हम किसी भी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, बट अब विनर तो जो है वो 1, 2 या 3 ही निकलेंगे, ठीक है ना। और वो कौन से होंगे? जिन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, दे विल बी द विनर ऑफ द कंपटीशन। और जब हम विनर जो है सिलेक्ट करते हैं उस कंपटीशन के, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन जो है उस पर्टिकुलर कंपटीशन में जो है लिया है, तो उस बेसिस पे अब ये नहीं कह सकते कि दिस इज लाइक कि भाई यहाँ इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और आप तो सिर्फ 3 को ही प्राइज दे रहे हो, तो ये इक्वालिटी क्या है? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट इक्वालिटी। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। डिवीजन ऑफ वर्क है सोसाइटी में, बिकॉज उन 3 को प्राइज मिल रहा है, उन 3 ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द प्राइज, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द पोजीशन। अंडरस्टैंड? सो बट व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हम किसी को रोकेंगे नहीं पार्टिसिपेट करने में। सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करे। मीन्स whether a person belong to a rich family or a poor family, they have equal opportunities. दोनों के पास equal opportunities होनी चाहिए कि भाई सपोज करो आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या आपको आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मीन्स एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। चाहे एक स्टूडेंट है वो एक रूरल एरिया से है, चाहे एक अर्बन एरिया से, चाहे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से है, वो सभी जो है एक ही रूम में बैठकर एग्जाम जो है कंडक्ट कर रहे हैं, और बाकी किसके ऊपर बेस्ड है? बाकी उनके टैलेंट के ऊपर बेस्ड है। सो दिस इज नोन एज द इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर like again religion, caste and other things. Class difference may lead to clashes and violence. और जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, और वो कब खत्म होगी? जब गवर्नमेंट जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करेंगी। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज करती रही सोसाइटी में तो देयर में बी अ चांस ऑफ क्लास क्लैशेस। जो क्लासेस हैं, जो रिच और पुअर है, उनके बीच में एक क्लैश भी हो सकता है। सो
It is the duty of the government that government should provide equal opportunity to all. So student, today we discuss three dimensions of equality. First one is the political equality, means all the citizens are equal, right to vote, right to contest election. Then social equality means no discrimination in the society on the basis of differences like religion and caste. Then we discuss the economic equality, providing equal opportunities to all. So this is for all. This is for today's students. Go through the video and take your doubts. Thank you. Have a nice day.